नमस्कार। भारत माँ के माथे पर एक तिलक जैसे इस अमृत भाषा को प्यार न करूँ कैसे। आशा के मिट्टी और स्वरों के आसमान में देख न पाऊंगे एक पवित्र भाषा ऐसी। नमस्कार। मातृभाषा माँ की धूत जैसे है, हमारे खून पर मिला है वो। हमारे लिए हिंदी भी मातृभाषा ही है, क्योंकि उसका माधुर्य हमारे तन मन में भरा है। तो आइए हम हिंदी त्योहार मनाते हैं। प्यारे अध्यापकों, आदरणीय अभिभावकों और प्रिय छात्रों, नमस्ते। आज 14 सितंबर देशीय हिंदी दिवस। हम सब जानते हैं कि सितंबर 14 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया भारत में। हमारे संविधान में धारा 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी व्यवस्था की गई। 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, औद्योगिक भाषा है, अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी है। इस हिंदी को इसी पद पे पहुंचने के लिए बहुत अधिक संस्थाओं का, बहुत अधिक व्यक्तियों का योगदान है। फोर्ट विलियम कॉलेज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, नागरी प्रचार सभा काशी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केरल हिंदी प्रचार सभा, इस प्रकार अनेक संस्थाओं ने अपनी भूमिका निभाई है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भारत के स्कूलों में हिंदी लाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के अनुसार हिंदी भारत की भाषाओं में सबकी सरल भाषा है, इसलिए राष्ट्रभाषा का पद हिंदी को मिलना है। गांधी जी ने बताया है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी की प्रगति के लिए हमारे संविधान के 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार व प्रसार मेरा, आपका, सब लोगों का, सब भारतीयों का कर्तव्य है। इतना कहकर आपके स्कूल का हिंदी मंच का उद्घाटन कर्म निभा के मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज सितंबर 14 हमारे विद्यालय में 17 साल पहले ही हिंदी मंच का आरंभ किया था। बहुत खुशी के बात है, लगातार हमारा विद्यालय की हिंदी अध्यापक लोग अभी तक तूफान के बीच जलाए दिए जैसे हिंदी का संरक्षण कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं अपने तहे दिल से आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। As usual, Gurukulam is once again celebrating an important day. As it was informed before itself in Hindi, I have said few things. Today is National Hindi Day. So Gurukulam will always give importance for all the national days. So first of all, I wish you all Hindi Day. Okay, so as you all know the importance of Hindi, Hindi is very prominent in our country, and all over India maximum people speak Hindi, and also in Kerala Hindi has given much priority and much importance. In Gurukulam, Hindi for last many years Hindi club is there, and Hindi teachers all are taking lot of effort to develop Hindi among our children. And I am so happy to say that right from LP to higher secondary, especially higher secondary, almost all students who have opted Hindi, they can beautifully speak Hindi. That is credit of our school, because I have experienced that when I move with children
for tour and other purpose, I have seen that children speaking to outsiders, bargaining in Hindi beautifully. And even those people used to ask us, you people are coming from north. So that is a great thing for all the Gurukulam teachers and students. See, we cannot stay in our own area. We have to move outside for job purpose, for many reasons. We have to go outside. So Hindi is a common language where you can communicate with everyone. Language is always like that. Whatever you have inside, you have to express that to others. Malayalam is our mother, and we often say English as our bread, and Hindi is like our feeling of brotherhood or fraternity. Hindi is required because national language Hindi is that much important. So children, right from LP section, teachers are using Hindi in your classroom. Now in the virtual videos also, they are providing you beautifully Hindi classes. They are all in Gurukulam, all teachers are able to speak in Hindi. So utilize them. You listen to the videos and it's very easy. Hindi is the language. See, it's similar to Malayalam and similar to Sanskrit so that you can easily learn Hindi. So practice that, because we can proudly say that I know this many language. We can say, if you know Hindi, you can say Hindi, Malayalam, English. So when we go outside, the most importantly, I have noticed the children outside, they have for their credential many languages they have with them. So that is, their confidence is super, more than us, because of the language power. So children, you learn Hindi and you learn English, and you also always use Malayalam. So these three languages you carry equally important, and you have to move with that. I wish you all to have great opportunity to learn Hindi, English, Malayalam. So thank you so much for all the Hindi club members and Hindi teachers. Really, they are stunning. They are really performing like anything in Gurukulam. So we have to give big round of applause for all the Hindi teachers. Thank you so much. Wish you all the very best. Thank you. नमस्कार। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कहना चाहता हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। पूरे विश्व में कई ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में से हिंदी चौथी है। आज़ादी मिलने के बाद हमारा देश में अंग्रेजी का उपयोग बढ़ते जाते समय और हिंदी का बहिष्कार को देखते हुए हिंदी दिवस का निर्णय लिया गया था। हमारा राज्य हिंदुस्तान, जिसमें कई सारा भाषा है, जिसमें हिंदी का उपयोग आम धरातल से ऊंचा है। हिंदी भाषा केवल संवाद के लिए नहीं बल्कि महत्वपूर्ण चीजों में भी उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का उपयोग केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि हमारा केरल में भी उपयोग किया जाता है। और केरल की बात हो तो हमारा विद्यालय VSS गुरुकुलम हिंदी का भाषा का बहुत अधिक अहमियत देता है, जिसके लिए कई सारे कार्यक्रम भी किया जाता है। चाहे कलोत्सवम हो या फिर और कोई विशिष्ट दिवस, हिंदी भाषा का उपयोग हमारे विद्यार्थी अक्सर करते हैं। चाहे प्रभाषण हो या उपन्यास या साहित्य से जुड़ी कोई और चीज, हमारा हिंदी भाषा का अक्सर हर एक का कान और जुबान पे बसते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। भाषा केवल एक माध्यम नहीं, वह एक झंडा का पहचान है। हमारे देश में ज़्यादा लोग हिंदी में बात कर रहे हैं और जैसे हिंदी हमारा राजभाषा है, वैसे हिंदी हमारा गर्व की भाषा भी है। हमारे विद्यालय का बच्चे कलोत्सव में हमेशा हमारे हिंदी विभाग का सिर झुकने नहीं देते। हमारे स्कूल में कई बच्चे हैं जो हिंदी भाषा को प्यार करती है और उसको प्रधानता भी देते हैं। बच्चों में हिंदी के प्रति शौक बढ़ाने में यहाँ के अध्यापकों को भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब हम हिंदी छात्रों हिंदी दिवस मनाते हैं। आज हम सभी छात्रों हमारी दिल से कुछ कहना चाहता है
हिंदी भाषा के बारे में। और जितने लोग हिंदी भाषा को प्यार करते हैं उन लोगों के लिए हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, भारत विविधता का देश है। ये भी नहीं, विविधता में एकता दिखाने वाले देश है। इसलिए ही भारत में कई तरह की भाषाएं हैं और उनमें से एक भाषा को देशी भाषा के रूप में चुन गई, वही है हमारी हिंदी। सितंबर 14 हिंदी दिवस से देशी भाषा का एक दिन। सब लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। बीएसएस गुरुकुलम स्कूल आलतूर केरल के कला क्षेत्र में मशहूर स्कूल है। ये भी नहीं, हिंदी कला क्षेत्र में कई सालों से ये स्कूल का नाम कला क्षेत्र के मंच पर गूंजने वाला नाम है। महान प्रतिभा वालों के स्कूल है बीएसएस गुरुकुलम स्कूल। और आप लोगों के हिंदी का अध्यापक रंजित जी हमारे सबसे प्रिय दोस्त है। हिंदी मंच के तत्वावधान में बीएसएस गुरुकुलम स्कूल में कई तरह की कार्यक्रम चल रहे हैं। हिंदी दिवस हर साल आप लोग मनाए जाते हैं। ये साल भी हिंदी दिवस मनाते हैं। इस शुभ दिन में मेरे प्यारे छात्रों सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और आगे भी हिंदी के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में तुम अच्छी ढंग से भाग लें और सभी कार्यक्रमों में जीतना भी होना है। सबको धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे बच्चों और प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज सितंबर 14 हमारे लिए बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारत में 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी भाषा का महत्व बढ़ाना तथा प्रचार करना है। हिंदी भारत के ज्यादा लोग बोलने वाली भाषा है। भारत की संस्कृति तथा विचारों को सरलता से आदान प्रदान करने का सक्षम माध्यम है हिंदी। भारत के साहित्य क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा का योगदान महत्वपूर्ण है। भारतेंदु और प्रेमचंद जैसे महान सूर्यों का उदय तथा तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास आदि महान विद्वानों का हस्ताक्षर इस भाषा में है। इसके साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदी भाषा का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। आजादी में गूंज उड़े नारे या देशभक्ति उठने वाले कविताएं सभी ने देश की जनता के हृदयों में क्रांति का ज्वाला को भरने की कार्य किया है। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा है कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिस राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। मेरा मतलब यह है कि हिंदी का प्रचार व प्रसार हर भारतीयों का कर्तव्य है। ये निभाने के लिए हम कोशिश करें। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी के पास ये जादू है ना कि हम इस भाषा के कितने भी करीब जाए और अंदर जाने की जोश देते हैं और जाते जाते हम इसकी खूबसूरत दुनिया में खो जाते हैं। नन्ही बच्चे की हंसी जैसे पवित्र इस भाषा राजभाषा का मुकुट पहनकर आज 57 साल हो गए और कई सालों से हम हमारे विद्यालय में हिंदी के समुद्र में प्रयाण कर रहे हैं और इसके दौरान कानून के पालन करके आज हम हिंदी सप्ताह समारोह मना रहे हैं। भारत भाषाओं की संख्या में कुछ कम नहीं है। 1600 से ज़्यादा भाषाओं से संपन्न भारत की संस्कृति में सिर्फ एक है हिंदी। इन अनेक भाषाओं में एक होकर विश्व भर प्रसिद्ध हुआ। इस भाषा कितना खास होगा ये सोचिए। हम बीएसएस गुरुकुलों के छात्रों के लिए हिंदी एक मनपसंद भाषा है। तो अब हमारा विद्यालय में हिंदी को रंगीन बनाने में कामयाब हुए कुछ पूर्व विद्यार्थियों के बात हम सुनते हैं। नमस्कार, मैं भुवना।
आज एक बार फिर अपनी स्कूल के विद्यार्थी बनकर कुछ बोलने का मौका मिल रहा है मुझे। तो आज 14 सितंबर है और इस खास दिन मैं आप सबको अपनी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी मान है, शान है, अभिमान है। हिंदी से हिंदुस्तान है। मेरे लिए हिंदी बहुत खास है। सबसे पहले वजह ये है कि हिंदी एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है जिसे बोलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दूसरी वजह ये है कि हिंदी की वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों के लम्हे और सम्मान के मौके मिले। हमारा विद्यालय तो हमेशा से हिंदी को बहुत महत्व देते आया है। सिर्फ एक पढ़ने के विषय नहीं बल्कि उसके ऊपर भी हिंदी को स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे विद्यालय में एक हिंदी परिवार भी है जिसमें विद्यार्थियाँ हैं और अध्यापक भी। और ख़ास करके आज के दिन तो हम बहुत अच्छे से मनाते भी थे। शायद ही कोई इतने अच्छे से हिंदी दिवस को मनाता हो। सब कुछ उस दिन हिंदी में होता था और कलोत्सव में भी हिंदी के कार्यक्रम बिल्कुल कम नहीं थे। बहुत सारे बच्चे भाग भी लेते थे और हम सब मिलकर अपने अध्यापकों के साथ तैयारियां करते थे। उन दिनों की यादें तो हम कभी बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो दिन तो हमारी ज़िंदगी में तो बहुत ख़ास थे। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। भारतवासियों के लिए मातृभाषा तो अलग है पर सबके लिए एक ही राष्ट्रभाषा है और वो हमारी अनेकता में एकता भी कायम रखती है। और आज के ज़माने में ये बोलना भी गलत होगा कि कोई हिंदी को महत्व नहीं देता, क्योंकि खास करके केरल में विद्यार्थियाँ और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को मायने देते हैं, हिंदी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन फिर भी पूरे भारत में देखा जाए तो हिंदी प्रदेशों में हिंदी को उतना महत्व नहीं मिल रहा है जितना शायद उसे मिलना चाहिए। पर भारतीय होने के नाते और हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा होने के नाते क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम सब हिंदी जानें? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना जानना हम भारतवासियों को शोभा नहीं देता। इसीलिए हम सबको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी हिंदी को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। तो आज के इस खास अवसर पर मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि हिंदी की खूबसूरती और ख़ासियत जानने के लिए सबसे पहले उसे अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी कोशिश से शायद ऐसा भी हो सकता है कि कल यहाँ ऐसा कोई ना हो जो हिंदी ना जाने। तो मैं आप सबको एक बार फिर हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि हमें पता है कि समय उतना अच्छा नहीं है, दूरियां बढ़ रही है, हमारी आज़ादी में लगाम है, सब कुछ थोड़ा मुश्किल है, मगर अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। इसीलिए अपने दिल में उम्मीद के दिए जला के रखिएगा कि कल फिर से वो पहले ज़माना वापस आ जाएगा जहाँ ना डर हो ना दूरी हो और हमारी खुशियों के सपने पूरी हो। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अपर्णा। मैं हमेशा गुरुकुलम के हिंदी परिवार की एक सदस्य रही हूँ। तो आज सितंबर 14 के इस विशेष अवसर पर मैं आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी तो एक खूबसूरत भाषा है, बहुत सरल है। हम सबको हिंदी समझने की, हिंदी सीखने की एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। स्कूल में हिंदी परिवार के साथ बिताई हुई हर लम्हा, हर दिन मेरे लिए बहुत यादगार है। हम बच्चे अपनी कविताएं, कहानियाँ और निबंध ये सब आपस में पढ़ के सुनाते थे और एक दूसरे की खूबियाँ और कमियाँ बताते थे। हिंदी के सभी अध्यापकों ने भी हमारी बहुत मदद की है। स्कूल में तो हमें हिंदी पढ़ने की, हिंदी सुनने की, समझने की, हिंदी में बातचीत करने की, हिंदी में लिखने की बहुत सारे अवसर मिले हैं। इन अवसरों का उपयोग करके ही हम लोग अपने हिंदी को बेहतर बना पाए हैं या अच्छी हिंदी सीख पाए हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी स्कूल में ऐसे बहुत सारे अवसर मिल रहे होंगे। हिंदी के विविध कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। ये सब करके ही हम अपने हिंदी को अच्छा बना पाएंगे। तो मैं आप लोगों को अपनी लिखी हुई एक कविता भी सुनाना चाहूँगी। तो सुनिए मेरी ये कविता, सफ़र और मंजिल। इरादों को समेट कर निकला था कामयाबी पाने की दौड़ में।
ना रुका ना ही मुड़कर देखा। रिश्ते छूट गए, खुशियाँ गुम गए, पता भी नहीं चला ये कैसा सफर हुआ। चाहतों को करके हासिल, जरूरतों को करके पूरा, जीत से तो मुलाकात हुआ, पर खुद को भी खो दिया ये कैसा मंजिल हुआ। दौड़ तो दौड़ रहे हो, पर क्या जिंदगी जी रहे हो? जवाब अगर ना है तो ठहर जाओ एक पल के लिए, दिल से पूछो वो राह दिखाएगा। सपनों को समेटकर चलना शुरू करो, जीने की एहसास पाने, रिश्तों की छाया में आराम करना, खुशियों से नजर मिलाना, खुद से भी थोड़ा प्यार जताना। सुकून की सांस भर के, जज्बातों को महसूस करके, खुद को वापस पाके जिंदगी से मुलाकात हो जाएगा। आखिर जीना ही सफर है और जिंदगी ही मंजिल है। तो ठीक है, आप सब लोग ऐसे ही हिंदी समझने की कोशिश करें, हिंदी पढ़िएगा, हिंदी में लिखिएगा और हिंदी से प्यार भी करिएगा। और हाँ, आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम प्रसीता और 2015 में मैंने 12वीं कक्षा खत्म की। आज भी मुझे इतनी तरह से हिंदी में बात कर रही हूँ, इसका कारण रंजित सर और राधिका मैम है। उन्होंने अच्छी तरह से हिंदी का बेसिक सिखाया था और मैं आज तक नहीं भूली। आज भी कई बार मुझे उसका काम आती है, उनकी सिखाई का काम आती है। और एक और बात कहना चाहती हूँ, जब मैं स्कूल में था मैंने कलोलसम में पार्टिसिपेट किया हिंदी रेसिटेशन में और मुझे फर्स्ट A ग्रेड मिली। 5 साल हो गया लेकिन आज भी मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिलता है और इसे देखकर मैं बहुत आई जस्ट फील वेरी प्राउड अबाउट दैट एंड आई जस्ट फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिबा। आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सालों से हमारे विद्यालय में एक हिंदी परिवार है जिसमें भाग बनने के लिए मुझे भी अवसर मिला था कलोलसम के द्वारा। वो एक वक्त ज़िंदगी के मेरे लिए बहुत खास है। हम दोस्तों और अध्यापकों ने साथ मिलकर तैयारी करते थे और वो यात्रा मेरे लिए बहुत खूबसूरत है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज 14 सितंबर पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सबको हिंदी सीखने की कोशिश करना चाहिए और हिंदी की महत्व समझना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। फिर एक बार आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को हमारी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ अमृता दास। मैं हूँ अक्षया दास। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं और मुझे खुशी है कि इस माध्यम के द्वारा हम आपसे मिल सकते हैं। ऐसे हम जानते हैं कि हर एक क्षेत्र में हमारे विद्यालय की चमक दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस मौके पर हमारे विद्यालय से जुड़े कुछ पुराने यादें आपके साथ मिलकर मैं ताज़ा करना चाहती हूँ। 2011 और 12 दोनों साल मैंने लगातार हिंदी भाषण के लिए स्टेट कलोलसम में हिस्सा लिया था और लगातार दोनों साल मुझे तीसरी स्थान भी प्राप्त हुआ था। इस कामयाबी का पूरा श्रेय रंजीत जी और राधिका जी को ही है। आज भी वो पल मेरी जिंदगी के सबसे अनमोल पलों में से एक ही है। इतने साल बीत गए, आज भी हमारा और हिंदी परिवार का रिश्ता उतना ही अटूट है। हिंदी परिवार इतने साल होकर भी आज भी इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि इनकी नींव है रंजीत जी, राधिका जी और हमेशा हमारा हौसला बढ़ाने वाले विजयन जी। इन सब की वजह से ही इतने साल होकर भी हमारा हिंदी परिवार एक साथ है। चाहे कितने भी साल बीत जाए, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन हमारे और हिंदी परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ता हमेशा ऐसा ही बने रहेगा, अटूट ही रहेगा। एक और बार सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। नमस्कार, सबसे पहले सबको मेरे दिल से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है मेरे लिए खास तौर पर कि वो मेरे दिल से कहीं गुना ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कि पहली मुलाकात हिंदी से तब हुई जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो एक यूथ फेस्टिवल की माहौल थे और हाउसेस में बांटने का ये बच्चों को, और हमारे हाउस से भाषण को हाई स्कूल भाषण में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं थे और एक स्लॉट की कमी थी।
और उसी में मुझे भेजे गए और वैसे वैसे मेरी हिंदी से मुलाकात भी हो गई। और अब जाके मेरी हिंदी इतनी पूरी थी कि रंजित सर और राधिका टीचर को बहुत ही मेहनत करना पड़ा कि मेरी हिंदी इम्प्रूव हो, बेहतरीन हो। हिंदी के बारे में कहा जाए तो वो शायरी की भाषा है। आमतौर पर जो भी हम कहते हैं वो भी शायरी सी लगती है और हमारे दिल के जो भी विचार हैं वो सीधा कम ही शब्दों में हम प्रकट कर सकते हैं। यही है उसकी खासियत और वो इतने अहम हिस्सा बन गए हैं हर एक भारतीय की ज़िंदगी में कि हमारी भारत की, हमारी वतन हिंदुस्तान की अखंडता की प्रतीक है हिंदी। हिंदी प्रदेश हो या अहिंदी प्रदेश हो, उसको एकता में बनाए रखने के लिए हमेशा हिंदी का योगदान बड़ा ही है। और स्कूल से निकलते हुए मुझे अब तो 6 साल बन गए और हर एक मौका, जितनी भी मौका मुझे मिली है उससे मैं बहुत ही आभारी हूँ। और भारतीय होने के नाते हमारे यही फ़र्ज़ बनता है कि हम हिंदी का आदर करें, इस भाषा का सम्मान करें। और एक बार फिर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रही है। ये मैं अपनी सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे बचपन से लेके हिंदी भाषा को सीखने का और हिंदी साहित्य को समझने का मौका मिला है। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि जो हिंदी बातचीत के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो हिंदी हमें सिखाई जाती है वो दोनों बहुत अलग है। हिंदी की शुद्धता जो है वो कम होती जा रही है। देश की युवा पीढ़ी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हिंदी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और हिंदी भाषा की शुद्धता को बनाए रखने की कोशिश करें। इसी बात के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते। नमस्कार, आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें ये पता है कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। जिस तरह अंग्रेज़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह हिंदी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज की युवा पीढ़ी हिंदी के महत्व को समझकर उसे ज्वलित रखने की कोशिश करना चाहिए। इस अवसर पर मैं कबीरदास जी की एक दोहा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोहा इस तरह है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। इसका मतलब यह है कि एक इंसान को जैसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले का मन को अच्छी लगे और ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख पहुंचाती है। इसके साथ साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। इसलिए हिंदी की महत्व को बढ़ाइए और उसे उज्ज्वलित रखिए। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार, सबको मेरा सादर प्रणाम। आप सबको विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। एज ए प्राउड स्टूडेंट ऑफ गुरुकुलम, मेरा नाम कीर्तना रवि, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में फाइनल ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ती हूँ। मेरा जीवन में हिंदी भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं 7वीं कक्षा से हिंदी कलोत्सव में भाग ले रही हूँ और हिंदी भाषा में व्यवहार करने के लिए और हिंदी भाषा के बारे में जानने के लिए कलोत्सव ने मुझे बहुत मदद किया है। और आज आप सबके सामने मेरे कलोत्सव एक्सपीरियंस से मेरा एक बहुत प्यारा पोएम मुकेश जी की दान मैं आपके सामने पेश करती हूँ। खुश नसीब हूँ मैं, जू
ये जीवन मिला, यश मिला, मान मिला, सुख मिला, पर मन कहता है, मन नहीं भरा। अंत से पहले मन कुछ और करना चाहता है, कुछ और पाना चाहता है, कुछ और गाना चाहता है। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, हर मुरादें पूरी नहीं होती। फिर भी ये मन है कि और जीना चाहता है, और रमना चाहता है, और गाना चाहता है। क्या होगा जब जान न रहेगी तन में, अतृप्त रह जाएगी कुछ इच्छाएं मन में। जान से ज्यादा अब किसी को क्या दे सकते हैं? दूसरों ही से जो सीखा है, जो इस दुनिया से तुम्हें मिला है, वो इस दुनिया को, लोगों को वापस कर जाओ। जितना कर सको कर जाओ, बस वापस कर जाओ। यही उसूल है। न रहने के बाद भी जीवित रहने का अनुभव कराने वाला अंगदान, देहदान, जीवन को एक और जीने का नाम है। महान है, महादान है, पुण्य का काम है। जीने के लिए जीना ही जिंदगी है, न मरने के लिए। मैं चिता की राख नहीं बनूंगा, कब्र में कैद नहीं रहूंगा। मेरी फितरत है आजादी, मैं आजाद ही रहूंगा। धन्यवाद और अच्छी दिन। नमस्कार, मैं हूँ मरिया। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, इसलिए उसका महत्व को समझना और वो सीखना हमारे मातृभूमि के प्रति हमारा दायित्व है। हमारे स्कूल में भी हिंदी को बहुत आगे रखता है, इसलिए हमारे स्कूल में एक हिंदी टीम है जिसमें कलोत्सव द्वारा मुझे भी हिस्सा होने का मौका मिला था। अध्यापक हमारे बहुत मदद करते और हम में से हर लोग एक दूसरे के सहायक थे, जिससे मैं बहुत आगे बढ़ सका। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के द्वारा मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी जानने की जरूरत को हम सबको समझना चाहिए। एक और बात, सबको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज जैसे हम सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस है, मैं अपनी तरफ से सभी को हिंदी दिवस की बहुत बधाई देती हूँ। 6 साल पहले मैं स्कूल की विद्यार्थी थी और आज मुझे बेहद खुशी है कि वही पहचान के साथ कुछ बोल पा रही हूँ। और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ के जैसे अहिंदी प्रदेशों में हिंदी को इतने महत्व देने वाला विद्यालय तो हमारा ही होगा, जो हिंदी की भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने में और उसका प्रसार करने के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिर्फ हिंदी दिवस ही नहीं बल्कि हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाता था, जिसके तहत अनेक प्रतियोगिताएं कराई जाती थी, जिससे बच्चे हिंदी के महत्व को समझे, भाषा के प्रति उनमें रुचि जागे और उनका ज्ञान बढ़े। हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी में हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका है। केवल एक अनोखी भाषा ही नहीं जो पूरे भारतवर्ष को एकता के बंधन में बांध कर रखे, बल्कि हिंदी हिंद की धड़कन है, हिंदुस्तान की पहचान है और हर हिंदुस्तानी का गुरूर भी। जैसे अंग्रेज़ी पूरी दुनिया को चलाती है, वैसे हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। जिस गर्व के साथ हम अन्य विदेशी भाषाएं सीखते हैं, वैसे ही हमें अपनी भाषा हिंदी भी तो सीखनी चाहिए। इस वक्त हम भले ही एक दूसरे के पास ना हो, पर हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो क्यों न इस नई सोच के साथ हम अपनी राष्ट्रभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं और हिंदी दिवस मनाएं। मैं प्रियदर्शनी हूँ। मैं बीएसएस गुरुकुलम हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी स्कूल की पढ़ाई किया था और मुझे बचपन से ही हिंदी सीखने का बहुत ही शौक़ था।
और मुझे 5वीं कक्षा से 7वीं कक्षा तक निशा जी ने हिंदी सिखाया था और इसके बाद तो 12वीं कक्षा तक रंजित जी ने मुझे हिंदी सिखाया और मुझे अपने विद्यालय की वजह से हिंदी उत्सव में भाग लेने का एक मौका मिला था। तब मुझे और मेरे दोस्तों को सही सलाह देते हुए रंजित जी और राधिका जी था हमारे साथ और हमें हिंदी उत्सव में उनकी वजह से इनाम भी मिला था। उनकी वजह से हमें हिंदी भाषा के महत्व के बारे में और समझ सकते। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, भारत का सम्मान है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय होने के नाते हिंदी की महत्व के बारे में समझना और इसका प्रचार करना हमारे कर्तव्य होते हैं। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम और हिंदी दिन की शुभकामनाएं। मैं हूँ नित्या सुरेश, गुरुकुलम विद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं हूँ आपके पास हिंदी अनुभव बांटने की इच्छा में। सबसे पहले मैं हमारा रंजित सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि इतने साल के बाद भी उन्होंने मुझे याद किया। जी आपको कोटि प्रणाम। मैं इस गुरुकुलम विद्यालय पर 8वां कक्षा में आए थे, तब मुझे हिंदी पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर अध्यापकों के सहायता से मैं हिंदी सीखा। उसके अनुसार +1 कक्षा में मुझे बहुत बड़ा भाग्य मिला। विद्यालय का युवजनोत्सव पर मैंने हिंदी रेसिटेशन में बांट ली और मुझे पहला स्थान मिला। उस समय मैं बहुत खुश थे। फिर अध्यापकों ने मुझे बोला कि नित्या, आप सब डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता में ज़रूर जाना और हम स्टेट तक ज़रूर पहुँचेगा। मुझ पर बहुत डर थे, लेकिन ये कहना बहुत मुख्य है कि हमारा अध्यापकों विजयन सर, रंजित सर, राधिका टीचर, प्रिय टीचर और बालसुब्रमण्यन सर, उन्होंने मेरा डर दूर किया और मुझ पर ढेर सारी आत्मविश्वास भरी। रंजित सर और राधिका टीचर ने मुझे द्रौपदी नामक एक कविता किताब देकर उनमें से पंक्तियों का अर्थ भी सिखाया। फिर हर दिन मुझको हिंदी रेसिटेशन माइक पर बताने का अवसर भी देगा। ऐसे हमारा वॉइस मॉड्यूलेशंस भी उन्होंने सिखाया। फिर हम सब डिस्ट्रिक्ट पे गए और हमारा रेसिटेशन प्रस्तुत किया। सब डिस्ट्रिक्ट का प्रतियोगिता उतना कठिन नहीं था और मुझे पहला स्थान मिला। फिर हम डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता के लिए परिश्रम शुरू हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता सदैव कठिन है और महत्वपूर्ण है। मैं हमारा हिंदी रेसिटेशन प्रस्तुत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता पर गया। हमारा याद ठीक है तो वहाँ 20 से 30 तक प्रतिभागियों थे। प्रतियोगिता बहुत कठिन था। मैं हमारा रेसिटेशन प्रस्तुत किया और मुझे पहला स्थान ही मिला। हमारा विद्यालय के साथ ये बात पहली बार हुआ है। इस पर मुझको बहुत गर्व है और सदैव मैं इसके लिए हमारा अध्यापकों के प्रति कृतज्ञ होंगे। फिर स्टेट पर भी मुझे A ग्रेड मिली। हमारा माता पिता गुरु सब इसका कारण है मेरा ये प्राप्त होने का। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उन सब का आशीर्वाद और हमारा आत्मविश्वास से इस ज़िंदगी में हमको कुछ भी प्राप्त होंगे। मैं उपसंहार करता हूँ। आपको बहुत धन्यवाद। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हिंदी भाषा जानना हमारे लिए उतनी ही ज़रूरत है। आज हिंदी विश्व भाषा के रूप धारण किया है क्योंकि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाले भाषाओं में से एक है।
और भारतवासी होने के नाते हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है। हिंदी भाषा की कई कहानियाँ, कविताएं और गीतें हमारी मन छू लिए, तो ये एक सरल भाषा का ज्ञान पाना हमारे लिए बड़ी ही किस्मत की बात है और इससे हम ये जान सकते हैं कि हिंदी भाषा की महत्व। हिंदी भाषा एक विशाल वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाया हमें मूल्य देता है, एक ऐसी वृक्ष जिसकी छाया हमें साहित्य की ज्ञान देता है। हिंदी भाषा प्रचार सभा के रूप में आज पूरी दुनिया में मशहूर होते जा रहा है और आज के दिन हम हमारे हिंदी अध्यापकों को याद करने के बिना अधूरा रहेगा, क्योंकि हमारा उंगली पकड़कर इस हिंदी भाषा के सुनहरी दुनिया पर ले चल जाने वाला हमारे अध्यापकों को, हमारे गुरुजनों को आज हम आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु क्या होता है? गुरु वो व्यक्ति है जो हमारे ज़िंदगी की अंधकार को ज्ञान की रोशनी से मिटाता है। हिंदी भाषा सिखाया नहीं जाता, वो दिल से महसूस करके खुद ही सीख जाता है। और जैसे हम सबको पता है, इस कोविड महामारी की वजह से हम सब अपने अपने घर में अलग खुद के घर में बैठ रहा है, पर फिर भी हम हमारी मन को साथ रखकर इस हिंदी दिवस को मना रहा है। तो हम सब हिंदी मंच के ओर से और पूरी गुरुकुलम परिवार की ओर से आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहे, खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्ते। ठीक है, तो आज हिंदी दिन, सबसे पहले सबको हिंदी दिन की हार्दिक बधाइयाँ। तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज पूरा सा पूरा केरल पे माने हिंदी प्रदेश में हिंदी का प्रचारण बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो ऐसे हर एक विद्यालय के अध्यापक लोग इसी प्रकार हिंदी को प्रचारण करते हुए वो अपने छात्रों को बहुत ज़्यादा वो प्रोत्साहन दे रहा है। तो सही है क्या? कभी वो सही होगा ज़रूर। मुझे भी जानते हैं, मैंने केरल पे कई जिलों में मुझे तो मित्र हैं, वो सब मित्र ऐसा हिंदी प्रचारण के लिए कई काम कर रहा है। और विशेषतः भी आज का हमारा हिंदी दिन का उद्घाटन भी मैंने केरल का और एक जिले के एक अध्यापक किया गया है। इसमें से हमें समझ सकते हैं, माने पूरा जिले के लोग भी एक साथ, हिंदी के सब लोग एक साथ काम करके हिंदी प्रदेश में हिंदी को प्रचारण करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान कर रहा है। मेरी ओर से कहे तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं तो ये विद्यालय पे पहुँच कर तो 17 साल हो गया है। ये 17 साल से मैंने यहाँ पे कई विद्यार्थियों को हिंदी में बहुत आगे बढ़ाने के लिए कई काम किया है। और एक साथ ये सब अध्यापक लोग भी उसमें कितना योगदान किया वो कह नहीं सकता है। उसका उदाहरण है केरल की ओर से चलाने वाले युवजनोत्सव। अब सुना, मैंने वो तो ऐसे सुना होगा, केरला स्कूल कलोत्सव में हमारा विद्यालय के कई छात्र प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हैं। वो हिंदी भाषण में हो, हिंदी कविता रचना में हो और हिंदी कविता आलापन में हो, कहानी रचना और कविता रचना जो भी हो। ये तो केवल माने उसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि वो कठिन प्रयत्न कर रहा है क्या? कभी तो ये सब लोग सुना है क्या? कई छात्र भी सुन रहा है, इसलिए समझ सकते हैं, वो सबको जानते हैं। और अब कभी तो सुना होगा, प्रस्तुत विद्यालय में पढ़े पूर्व विद्यार्थी लोग भी कहा है, उसके अनुभव ये सब कहा है और वो सब आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ भी दिया है। वो लोग कितनी अच्छी तरह से हिंदी में भाषण किया है, कितनी अच्छी तरह से हिंदी में बातचीत कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है। तो इसमें से आपको समझ सकते हैं हमारा विद्यालय में BSS गुरुकुलम हायर सेकेंडरी स्कूल आलतूर में हिंदी को कितना स्थान दे रहा है। इसलिए हमारा विद्यालय सभी समय हिंदी में प्रथम स्थान पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो सभी समय में ही कहते रहते, केवल मैं नहीं है, यहाँ पे सभी अध्यापक लोग भी है, वो भी कितना ये सब काम किया है ये सब कहने के लिए, तो वो भी कहेंगे। तो राधिका जी आप भी कहो। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझे मालूम है आप सबको हिंदी पसंद है, आप लोग हिंदी को बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे ये बात कहने में मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे स्कूल में हिंदी एक विषय नहीं, एक आत्मा है। जिस तरह की बाकी हर भाषाओं को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, इसी तरह इस स्कूल में हिंदी को भी वही महत्व दिया जाता है। इसीलिए यहाँ जितने भी बच्चे हैं अच्छी तरह से हिंदी बात करते हैं, हिंदी पसंद करते हैं, उन्हें हिंदी बहुत पसंद है। इसीलिए वो जो कलोत्सव में भी जाते हैं तो हिंदी में बहुत अच्छे स्थानों पर उन लोगों को जो भी अच्छे स्थान मिलते हैं, प्रथम स्थान मिलता है। तो हिंदी यहाँ के बच्चे बहुत पसंद करते हैं।
मैं बाहर पढ़ी हूँ, लेकिन जब मैं केरला में आई तो मैं बहुत हैरान होगी कि जिस तरह से बाहर के लोगों को हिंदी में स्थान है, वहाँ केरला में भी हिंदी को वही स्थान दिया जा रहा है। जहाँ हिंदी प्रचार सभा के ऐसे बहुत से अभियान चला रहे हैं जहाँ बच्चों को हिंदी की भाषा की ओर आकर्षित किया जाए। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हिंदी भाषा को इतना महत्व देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप सबको मैं फिर एक बार से कह रही हूँ कि हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा से प्यार कीजिए, हिंदी में बात कीजिए। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबको हिंदी पसंद होगा, है ना। मेरा भी ये छठा साल है इस विद्यालय में, तो मुझे यहाँ आके ऐसा लगा कि हिंदी सही में यहाँ के हर बच्चों और अध्यापकों सबकी नसों में हिंदी का जो जोश है वो दिखता है। तो मैं भी यहाँ आके हैरान थी, मैं भी बाहर से मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ते समय हिंदी मेरी पसंदीदा विषय थी। तो यहाँ आके मैंने देखा कि यहाँ के बच्चों में इतना टैलेंट है, हिंदी के लिए इतना प्यार है। तो हम लोग सब अध्यापक मिलकर बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं हिंदी कलोत्सव के लिए, हिंदी आइटम्स के लिए। हमें पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना। तो राष्ट्रभाषा को कितना महत्व मिलना चाहिए, तो वो हमें यहाँ आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सब लोग इतना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, सबको इतना गर्व है हिंदी में बात करने में। सब छोटे से छोटे बच्चे भी हिंदी में बात करना चाहते हैं। तो इससे हिंदी का प्रचार कितना हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे हिंदी को इतना प्यार करते हैं। तो हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है और हिंदी हमारी ज़ुबान है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हम लोग आपस में हिंदी में ही बात करेंगे और इस हिंदी दिवस में आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। नमस्ते, सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे इस अवसर पर मेरी हिंदी अध्यापिका का याद आया, दीबा जी। वो तो मुझे हिंदी की ओर से रुचि बढ़ाया। तो मैं इस अवसर पर धन्यवाद देती हूँ। और आप सबको हिंदी पसंद है वो मुझे पता है। इस अवसर पर आप क्या करना है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हिंदी आपस में आप सब हिंदी में बात करना चाहिए। और छोटे बच्चों, आपके सामने मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप हिंदी में सोचो, हिंदी में बात करो और हिंदी में जियो। धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप सबको हिंदी बहुत पसंद है। मुझे तो हिंदी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि सब आज इस दिन 14 तारीख को हिंदी में बात करें, ताकि हमारी हिंदी भाषा को हम और ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। वैसे तो केरला में हिंदी आजकल सभी बात करते हैं, लेकिन हमारा स्कूल जो है हिंदी में बहुत आगे है। हमारे बच्चे हर क्षेत्र में हिंदी के इस विषय में बहुत आगे हैं। कहीं भी जाओ, अगर किसी भी कंपटीशन में या किसी भी इसमें हमारे बच्चे अगर हमारे स्कूल से जा रहे हैं तो वो हमेशा हिंदी में हमेशा आगे ही रहते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल हमेशा हिंदी विषय को बहुत महत्व देता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब हिंदी विषय को इतना महत्व दें ताकि हमारी राष्ट्रभाषा हर जगह पहुँचे और हर हिंदुस्तानी सिर्फ हिंदी ही बोले। सो जय हिंदी। ठीक है, तो मैं बताया क्या हिंदी की प्रधानता ये सब। तो जिस प्रकार हर हिंदी अध्यापक लोग किसी न किसी प्रकार किसी हिंदी अध्यापक की माने वो किसी प्रकार की प्रोत्साहन से ही ऐसे आ रहा है। ये रास्ता मुझे तो अनिल जी मुझे दिखाया था शुरू, उसे इस समय तो मैं नमन कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं तो हिंदी अध्यापक के रूप में अभी यहाँ पे नहीं घटेंगे। और इतना भी नहीं है, और कई अध्यापक लोग, रमा जी और अनिता जी, ऐसे कई अध्यापक लोग, ये सबकी प्रोत्साहन से ही मैं ऐसा बन गया है। जब मुझे यहाँ पे नियुक्ति की है उस समय सबसे पहले वत्सला कुमारी टीचर, वही तो यहाँ पे हिंदी अध्यापिका, तो उन्हें भी मैं अभी याद करके नमन कर रहा हूँ, क्योंकि वो सबकी हमारे प्रोत्साहन से ही मैं अभी ऐसे हिंदी का श्री गणेश किया है। तो सबको एक बार मैं नमन कर रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।
भाषा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें और एक असल स्कूल लाइफ एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ भी बेल आइकन मत भूलिए। धन्यवाद।